go through every line, go through every scene. और जितना अच्छी गाइडेंस इन्होंने मुझे दी है हर एक वक्त, जब भी मुझे कुछ सवाल पूछना था, शी वॉज ऑलवेज देयर, शी ऑलवेज करेक्टेड मी. जब मैं ऑफलाइन जाता था तो मुझे ऑनलाइन लेके आती थी. एंड आई थिंक वर्किंग विद हर, सोनल, यू आर द बेस्ट. Wow. So I think it's the perfect moment now to call Director Sahiba and hear from her also. Please give it up for Sonal Joshi. And I'd request all of you to step thoda sa forward. Yes, step forward. Are we having the chairs now? Can they sit, please? Okay. मैं पहचान नहीं पा रही थी. नॉर्मली मास्क के साथ आती हैं वो सेट पे. तो फर्स्ट टाइम विदाउट मास्क. सो अच्छा, ये आपका चेहरा है. Photos, yes. Let them take a seat first. आप chairs ले आइए. And our फोटो एक मिनट. अच्छा ठीक है. ये लो एक सेकंड. पहले फोटो. If our Sukhi ma'am can please come in the center, and Sukhi के दोस्त. Come. Okay. Thank you. आपको टाइम मिलेगा फोटोज का. Thank you so much. Can we have the chairs now, please? Yeah. यार मीना जी, एसी नहीं चल रहा है यहाँ पे. Okay. So, Sonal, सबसे पहले तो I'm going to direct my next question to you. These are two questions combined in one. सबसे पहले तो start करेंगे by tell me your feelings right now. It's your debut as a director. Come on, it's got to be huge. So, are you nervous? Are you excited? How do you feel right now? I think very, very nervous, very excited, super emotional. Actually, पूरा ऐसा खिचड़ी हो रखा है emotions का इस time पे. Because the journey, like you know, not having any contacts in the industry, पता भी नहीं था internship भी कैसे मिलेगी किसी film में. From there to sitting here chatting with you about my directorial debut, which is going to be releasing in a few days. I'm living my dream in front of all of these media persons. जैसे मैं देखती थी social media पे और जगहों पे इन लोगों को covering everybody. So I'm already living a dream, and I just feel so blessed and so grateful. Wow. You know, I love when people get to talk about their dreams and how they made it happen, because each one of us sitting here, I think we all had a dream and here we are now. Sonal, one more question. ये जो सुखी का character है, या this entire story, you know, how and when did it come to you? Actually, कहानी मेरे पास बहुत टाइम से थी. हमारे जो राइटर्स हैं अमेजिंग, जिन्होंने मेरे साथ काम किया है इस फिल्म पे, राधिका, रूपी, पॉलिमी यहीं पे हैं. क्या होता है, कहानी डायरेक्टर्स के पास बहुत होती हैं. कुछ थोड़ी स्पेशल होती हैं, कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेशल होती हैं. तो सुखी वॉज वन सच स्टोरी फॉर मी. नॉट ओनली बिकॉज इट फेल्ट, जैसा मैम ने कहा, बहुत होलसम कहानी है. ह्यूमर है, ड्रामा है, इमोशन है. इट फील्स वेरी रिलेटेबल. बट उससे बिगर रीज़न मेरे लिए ये था पर्सनली. आई सी अ लॉट ऑफ माई मदर इन द स्टोरी.
ज़िंदगी में यार माँ सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जो हूँ उनकी वजह से हूँ. So because of that, certain nuances of the characters, certain situation incidents from her life, we've tried to incorporate in the story, and तो उस वजह से कहानी थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेशल हो जाती है, दिल से आती है. And yeah, इसलिए this film is special for me, and I'm glad I got to make this story as my first film. Of course, thanks to Vikram sir for believing in this script, and to Shilpa ma'am, of course, for executing this character so well. क्या कोई है जिसने सबसे ज्यादा तंग किया था और all they were really good to you? नहीं, ऐसा सच कोई नहीं था. All right. I think बस अब एक ही इंसान की कमी है इस स्टेज पर. I would now like to invite the producer, जिसके बिना ये नहीं हो सकता. Vikram Malhotra, founder and CEO of Abundancia Entertainment. Can we have a chair? Will we be able to have a chair for him? Yes. Sir, आपके लिए तो हम space बनाएंगे. Help them up, please. All right, perfect. Please give it up for Vikram Malhotra, guys, once again. So I have a question for you. As a producer, जब आप किसी story को back करते हो, you kind of believe in it, and that is why you choose to back it. What do you think the audience is going to take away from this film? A tremendous amount of relatability. ये कहानी जब मैंने पहली बार सोनल से सुनी थी तो मुझे ये लगा था कि ऐसी कितनी सुखी मेरे आसपास हैं, मेरे अपने परिवार में, मेरे दोस्तों के परिवार में. All through my growing up, we've seen characters like this. This is a very relatable, very real film. इस फिल्म को बैक करने में कन्विक्शन की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमने ये कहानियाँ, ये किरदार असली ज़िंदगी में इतने देखे हैं और इतने देखते हैं और देखते रहेंगे कि इसका कन्विक्शन नेचुरल है और ऑब्वियस है. और वैसी ही एक फ़िल्म बनी है. ये फैंसी नहीं है, ये ग्लैमरस नहीं है, ये अनरियल नहीं है, ये एस्पिरेशनल नहीं है, ये रिलेटेबल है. ये उन लेडीज़ की कहानी है, उन रियल लेडीज़ की कहानी है जो हमारी सोसाइटी में हमारे आसपास हैं और हमारे अपने घरों में हैं. एंड दैट इज़ व्हाट वी होप टू प्रेजेंट टू द ऑडियंस इन अ फन मैनर. Can't wait to watch Suki in theaters right now. And अब I know कि आपके पास भी बहुत सारे questions होंगे. So I will now open the floor to media. If you have any questions, please shoot them right away. Yes. Hello. Hi, here. Towards Oh, the right. can you stand Hi, up, please? Shilpa. Yeah. Yes. Hi, Shilpa. This is your first woman-centric film. I mean, there are so many women. Your director is a woman also, the cute one. So how is it? So how is it working with her? I mean, she's young and cute, and what kind of, confidence did you have in her when you took up the film? Well, this is not my first woman-centric film. इससे पहले मैंने अरे यार वुमेन सेंट्रिक की बात कर रहे हैं हम लोग. धड़कन की थी मैंने, वो भी वुमेन सेंट्रिक थी. फिर मिलेंगे की थी मैंने, वो भी वुमेन सेंट्रिक ही थी. और इनके क्यूटनेस पर मत जाइए. शी वाज क्वाइट अ हार्ड टास्क मास्टर. क्वेश्चन क्या था? व्हाट वाज डिफरेंट? कॉन्फिडेंस. अच्छा. Well, she was very clear on set से. Not just on set, I'm saying right from the beginning. जिस दिन वो नरेशन के लिए आई थी, उनको स्क्रिप्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. पहली बात तो रिफ़र करने के लिए. I knew right, अभी इतना काम किया है मैंने कि मैं इतना तो पहचान सकती हूँ कि इनको काम आता है कि नहीं. I realized from day one कि ये बहुत मतलब पैशनेट हैं. एंड
when I reached on set, and then she very sweetly requested me, अभी इतना काम करने के बाद इतने एक्सपीरियंस के बाद मुझे लगा कि थोड़ा सा इनको भी कॉन्फिडेंस होगा मेरे काम पे, लेकिन she requested, can we do a workshop? So this film was the first film where I did a workshop. So I had to unlearn everything that I had learned, which is also a great exercise. तो बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, क्योंकि I really feel I'm a director's actor. तो जितना भी मुझे श्रेय मिलेगा इस फिल्म में से, उसका पूरा श्रेय इनको जाना चाहिए. एंड फिर सोनल बोलती है अगर आप अच्छी नहीं लगी ऑडियंसेस को, फिर वो क्रेडिट मुझे मत देना. बट मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि आपको पिक्चर ही नहीं, ये किरदार और सारे किरदार बहुत प्यारे लगेंगे. एंड इट्स अ फिल्म दैट विल मेक यू वेरी हैप्पी. एंड शी इज़ डन सच अ वंडरफुल जॉब. हर बेस इज सुपर्ब. जिस तरीके से वो एक्सप्लेन करती है, इनका जो विजन है, वो कैरेक्टर को कहाँ से कहाँ लेके जाना चाहती है, वो ग्राफ. एंड आई लव द फैक्ट दैट शी वुड समटाइम्स ऑल्सो, उनको पता है कि कहाँ एक्टर को छोड़ देना चाहिए और कहाँ पे उनको पकड़ के रखना चाहिए. वो बहुत मुश्किल होता है, यू नो. सो शी न्यू दैट एंड आई रियली इन्जॉयड. ये अनुभव जो था मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल रहा है. Hi Shilpa ji. Hello. Shilpa ji, on your left. Hi. आ गए. Hi. ओहो, हाँ, कैसी हैं आप? अभी तक तो ठीक हूँ, सुखी हूँ मैं. सुखी हैं. ओके. सो शिल्पा जी बहुत ही फिट एंड ब्यूटीफुल भी हैं आप. एंड सो कभी कभी ऐसा होता होगा कि कुछ एक आड़े टेढ़े बूढ़े एंड कुछ एक जवान भी देखते होंगे आपको. सो सुख कहाँ मिलता है आपको? आपकी गिनती है इन आड़े टेढ़ों में? ये चल रहा है. देखिए, हम एक्टर है, हमारा काम है एंटरटेन करना. जनता कैसी भी हो, हमारा काम है उन सभी को एंटरटेन करना. तो वी आर नॉट जजमेंटल. मैं जज तभी करती हूँ जब मुझे पैसे मिलते हैं टीवी पे. मैं अदरवाइज जज नहीं करती. हाय शिल्पा, आप इस फिल्म में पंजाबी कुड़ी बनी है, हाउस वाइफ. आपके सासू माँ और आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन था आपको देख के? वो बहुत उत्सुक है इस किरदार को थिएटर में देखने के लिए. मेरे पति ने तो देखा हुआ है ट्रायल. एंड आई हैव टू से, मैं बताना चाहूँगी, जब विक्रम और सोनल आए थे मेरे पास इस स्क्रिप्ट को लेकर, ऐसा कुछ हो गया था कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं ये फिल्म शायद नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज आई वॉजेंट इन दैट स्टेट ऑफ माइंड. तो मैंने विक्रम और सोनल को कहा कि शायद अभी मैं उस माइंड स्पेस में हूँ नहीं, तो आप किसी और को ले लीजिए. और मैंने 2-3 नाम भी दिए थे उनको कि इनके पास चले जाइए. तो वो मैं नहीं बोलूँगी, मुझे सुखी रहना है. लेकिन इनकी अच्छाई देखिए और इनका कॉन्फिडेंस देखिए. आप कॉन्फिडेंस की बात कर रही थी. इन्होंने ठान लिया था कि अगर सुखी का किरदार कोई करेगा तो बस मैं ही करूँगी. एंड आई जस्ट फील कि इट इज़ दैट कॉन्फिडेंस दैट काइंड ऑफ, वो जो फेथ इन्होंने मुझ में प्लेस किया. ये पिक्चर फिर 8 महीने के बाद इन्होंने वेट किया. विक्रम ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि whenever you are ready you tell me, that time we will take the film on the floors. और 8 महीने तक इन्होंने वेट किया. and he adjusted every step of the way. And and I have to add this here that मैंने जितनी भी फिल्में बनाई हैं, सुखी और शिल्पा ऐसा पहला कॉन्वर्सेशन था जहां एक लीड एक्टर ने मुझे कहा था कि मैं ये फिल्म नहीं कर सकती, और नाम सजेस्ट करे थे और बहुत परसू करा था सोनल को और मुझे कि मुझसे ये फिल्म मत करवाओ. नॉर्मली उल्टा होता है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है, अच्छी फिल्म होती है, अच्छी कहानी होती है, तो एक्टर्स आपको परसू करते हैं कि हमें ये फिल्म करनी है. शिल्पा ने हमें रिवर्स परसू किया था कि मुझे ये फिल्म नहीं करनी है. बट हियर वी आर एंड थैंक यू सो मच. no, so the reason I was coming to the main reason to answer your question, the person who convinced me to do this film was my husband. राज ने स्क्रिप्ट पढ़ी
और and as a man, imagine he read the film, the script, and मैं कहीं बाहर थी और स्क्रिप्ट मेरे टेबल पे पड़ा हुआ था. मैंने कहा, this beautiful film, but I don't think I'm ready for it. तो पढ़ते पढ़ते उन्होंने बीच में मुझे 2-3 बार फ़ोन किया, हंसते हंसते एक बार मतलब ये कहते हुए कि अरे यार बड़ा अच्छा सीन है ये तो. और एंड में व्हेन आई केम बैक होम उन्होंने कहा, आई यू क्रेजी, यू हैव टू डू दिस फिल्म. तो उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि बाकी तुम करो नहीं करो दूसरी चीज़ें, लेकिन इस फिल्म को ज़रूर करो. तो दैट जर्नी ऑफ 8 months was because of him, because he forced me to do it and he told me that this is some, हम सब में एक सुखी है, he said to me. तो एक आदमी का नज़रिया अगर ये हो सकता है, फॉर अ वुमन ओरिएंटेड फिल्म, हम सब में एक सुखी है, हम सब के ड्रीम्स अनफुलफिल्ड है, हम सब कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स को मारते हैं दूसरों के लिए. हम सब किसी ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं. और फैमिली की जहाँ तक बात होती है, हमारी कंडीशनिंग, स्पेशली वुमेन की हम बात करते हैं, तो हमें कंडीशन ऐसे किया गया है कि हम अपने लिए कम सोचें, दूसरों के लिए ज़्यादा सोचें और करें. और हमें लगता है अभी इतने एक समय के बाद हमें ये बिहेवियर नॉर्मल सा लगने लगा है, जबकि ये बिहेवियर सही नहीं है. आई थिंक समटाइम्स टू लिव अ लिटिल बिट फॉर योर सेल्फ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो बस उन चीज़ों के बारे में सोनल ने बहुत ब्यूटिफुली टच किया है, एंड इट्स रियली टच्ड मी, दिस फिल्म, एंड इट विल डू द सेम फॉर यू. Hi, my question, before I ask the question, I want to tell something to Sonal, because Sonal said that this is dedicated to your mum. I also could see a lot of my mum in the character, because, I feel that that generation of women especially, unfortunately, have been conditioned to kill their ambition to cater to the families. And regardless of that, they have always maintained that they are happy in life, right? They have never really... डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता उनके एम्बिशन के साथ उनकी हैप्पीनेस, फैमिली के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. हालांकि मैं अपनी मम्मी को अभी बोलता हूँ कि आपने बहुत कर लिया, अब आप जी लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बट दिस फिल्म, नाउ माय क्वेश्चन इज दैट दिस फिल्म will fondly, I'm not comparing it, but the space of this film will remind everybody of an English or a Panga, both films which are very special in their own ways, because it celebrated women who want to do something out of their family life, not really compromising on their family time. Shilpa, unlike somebody who asked, I know that you've done a few films in the past. Maybe the audience wasn't ready for those films, which have been really high on concept. With a film like English Winglish, when it released, actors and producers have gone out and said that they also didn't expect it to do such great business. It was a monstrous hit. But today, do you feel that there is an audience accepting such film, relating to such films more, and thereby going and watching it more? And does it help actors like you? Absolutely. I think it's a great time for films, for actors, and for filmmakers. At least now, there's a glimmer of hope. Abhi theaters वापस fill होने लगे हैं, and I feel this is such a great moment for all of us. इतने इंतज़ार के बाद, इतना इंतज़ार करने के बाद, तो I just feel कि I think it's a great time. और content तो बदलता रहता है हर दौर के साथ, and it's when you give the audiences something different, and you give the audiences the chance to sit back and think about something that maybe they know, but nobody has put focus on. So Sukhi is one of those films. You know it exists, but nobody has ever talked about it, and not in a preachy sort of way. So of course, I think it's a welcome change for all of us, and it's a great time. So I'm definitely expecting a lot from the audiences coming into the theater, for starters, and and for appreciating good content. Hello, ma'am. Sakshi Sharma from INS. My question is for Kusha और सुखी की फ्रेंड ईयर. जैसा कि ऑन स्क्रीन देखा गया, आप जो फ्रेंड जोन थे उनका बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अगर ऑफ स्क्रीन की बात करें तो आप लोग की जो फ्रेंड जोन है वो कितना स्ट्रॉन्ग हो पाया था? मैं
मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी कि एक्टर्स दिखते थे कहाँ से बात कर रहे हैं कहाँ से पहली बार मुझे भी नहीं दिख रहा कि कहाँ से बात कर रहे हैं, सो इट्स अ न्यू थिंग फॉर मी. बहुत अच्छा था हमारा ऑफ स्क्रीन बॉन्ड एक्चुअली, बिकॉज शिल्पा मैम बहुत ही कोलैबोरेटिव हैं. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट हर इज कि अगर वो कोई सीन कर रहे हैं ना तो वो आपको ज़रूर बताती हैं कि यू नो ऐसे कर लो, इसको वैसे कर लो. मुझे तो टिप्स भी देती थी बहुत, और हम सबको देती थी कि बाल थोड़े ठीक कर लो, ऐसे हो रहे हैं, लिपस्टिक टचअप कर लो, देख लो अपना हुलिया देख लो एक बार प्लीज शीशे में. मतलब एक्टिंग कर रहे हो, कुछ तो देख लो अपने आप को एक बार. सो यू नो शी वुड गिव दीज टिप्स बिकॉज इतनी ओजी है, इनको इतना एक्सपीरियंस है, तो मतलब इनके अंदर से बस वो फ्लो होती थी, वो सारी जो टिप्स होती थी. बट अदरवाइज ऑल्सो जब एक बार व्हेन शी वुड से एक्शन, उसके बाद हम वी वर आवर कैरेक्टर्स, बट वंस इट वाज कट वी वुड गो बैक टू आवर रेगुलर कॉन्वर्सेशन बिकॉज वी वर 4 of us, पवलीन, दिलनाज, हम चारों अगर बैठे हैं कुछ बात कर रहे हैं तो मस्ती तो हमेशा ही चलती रहती थी. एंड I think the way Shilpa ma'am just keeps everyone around her, she keeps a very nice, beautiful और बहुत ही ऐसे खुशी वाला माहौल होता ही है. बाकी मैं तो काफ़ी पुअर जोक्स क्रैक करती रहती थी ताकि आप बोलते रहो कि चुप हो जाए यार, बस कर, अब तो बस कर. Actually, I would like to add something to that. That is true कि Shilpa was the glue that bonded this friendship together, because even when Sonal used to say cut, तब भी हम लोग चकर कर बात करते रहते थे. तो Sonal had to literally send an AD कि उनको चुप करवाओ, scene cut हो चुका है. So that was the kind of friendship that we had developed on set, that we could not hear cut. We would हम just लोग go ऐसा on and ऐसे on. रायते की तरफ फैल जाते थे. और सोनल के दिमाग का दही कर दिया था हम लोगों ने. No, and sometimes Kusha would be like, अरे ये लाइन ऐड कर दूं, ये लाइन का. So there was a point where Sonal just stopped resisting. She just gave in and she said, हाँ Kusha तुम बोलते रहो, तुम बोलते रहो. एडिट में निकाल दो. उसने बोला नहीं ये. देखो नए आर्टिस्ट है हम, मैंने कहा 50 इम्प्रोव करेंगे, एक तो रखेगी, इसने 2 रख लिए. सो इट एक्चुअली मेड सेंस फॉर मी, राइट? Hi Shilpa, this Raj from Sansad Vani. Yeah, it is. Yeah, अगर रियल लाइफ में आपको मौका मिले सब कुछ छोड़ के ब्रेक लेने के लिए, तो क्या रहेगा आपका रिएक्शन? फिल्मी दुनिया से अगर ब्रेक लेने का मौका मिले और पुराने दोस्तों से मिलने का. You know, मेरी बेस्ट फ्रेंड आकांक्षा ने मुझसे पूछा अभी हाल ही में, जब उसने ट्रेलर देखा तो शी सेड ये रियूनियन बड़ा अच्छा प्लान है यार, एक थोड़ा सा करते. क्या आप यकीन नहीं मानोगे, ये फिल्म में ये किरदार तो मैंने प्ले कर दिया है, बट मैंने अभी तक I've never gone on a girls trip. I've never taken a holiday with my girlfriends. I've never done that. तो actually ये इस फिल्म ने ये सीड डाल दिया है मेरे मन में, and I really want to do this. तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझसे पूछा एक गर्ल्स ट्रिप करते हैं, तो मैंने बोला 1 मिनट में ज़रा डायरी देख लेती हूँ. तो मैंने उसको अगले साल का डेट दिया है. तो आई मीन मैं चाहती तो हूँ, लेकिन बैलेंस करना पड़ता है क्योंकि ये वक्त वापस नहीं आएगा. तो ये मेरी चॉइस है. जिस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब ये नहीं करना और मुझे बस थोड़ा सा ब्रेक लेना है, तो शायद मैं वो भी कर लूँ, लेकिन अब वो टाइम नहीं आया है मुझे लगता है.